ہے. تبھی تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار امام اہل سنت فاضل ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ نہ رہا تو کائنات کی اور چیزیں اللہ کے نبی کی نگاہ نبوت سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے, نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, معاذ اللہ. لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا کیا, حضور کو پہاڑ کے پیچھے کا علم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کی ہر چیز کا علم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب آپ ملاحظہ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر اور ان کے علم غیب پر آپ قربان جائیں. ایک مرتبہ ابو جہل لوگوں کو یہ کہہ کر کے گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ محمد ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں, اور لوگوں کو یہ باتیں بتا رہا ہے. ابو جہل لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے کہہ رہا ہے کہ ایک شخص مکے میں آیا ہے اور اس کا نام ہے محمد, اور وہ ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے اور اس دین سے لوگوں کو جوڑ رہا ہے, اور ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے, ہمارے معبودوں کے آگے سجدہ کرنے سے وہ منع کر رہا ہے. اور جب اس نے دیکھا کہ میری کام نہیں لگ رہی ہے, میرا بس نہیں چل رہا ہے, تو اس نے ایک خط لکھا, اور خط لکھنے کے بعد وہ خط بھیجا حبیب یمنی کے پاس. ملک یمن ایک شہر ہے, وہاں یمن وہ خط بھیجا حبیب یمنی کے پاس, اور حبیب یمنی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. ابو جہل نے خط بھیجا حبیب یمنی کو, اے حبیب یمنی تو نے مکے والوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں, تیرے مکے والوں پر بے شمار احسانات ہیں, تو نے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے, بہت سے لوگوں کے گھر تو نے بنوا دیے ہیں, بہت سے لوگوں کے گھر تو چلا رہا ہے, لیکن تو یمن میں ہے اور یہاں ایک شخص محمد نام کا آیا ہے, وہ ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے اور اس دین سے لوگوں کو جوڑ رہا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ وہ تبلیغ کر رہا ہے. ایسا کرو یہ خط پاتے ہی تم یمن سے سفر کرنا شروع کرو اور مکے آ جاؤ. میں اپنی ماں اور بہنوں سے اس بات کو بتانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ہماری ماں اور بہنوں کے سامنے ایسی سی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب وغیرہ نہیں تھا, بس وہ اللہ کے نبی تھے, ان پر اللہ نے قرآن اتارا تھا, وہ ایک نئی شریعت لے کر کے آئے تھے, لیکن انہیں علم غیب اللہ نے نہیں عطا کیا تھا. تو آپ ملاحظہ کریں اور تاریخ وغیرہ کی کتابیں, حدیث کی کتابیں اور علماء اہل سنت, مستند علماء اہل سنت کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں جو پڑھی لکھی ہماری خواتین امت ہیں. آپ یہ واقعہ ملاحظہ کریں, جب ابو جہل کا خط ملک یمن پہنچا اور حبیب یمنی نے اس خط کو پڑھا, تو حبیب یمنی نے خط پڑھتے ہی سفر کرنا شروع کر دیا. مکے پہنچا اور مکے پہنچنے کے بعد ابو جہل کے پاس گیا. ابو جہل کے پاس پہنچنے کے بعد ابو جہل سے کہا بتاؤ کیا کہتے ہو. ابو جہل نے ساری باتیں بتائیں کہ میں نے تمہیں خط میں بھی لکھا تھا کہ ایک محمد نام کا شخص مکے میں آیا ہے, وہ ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے اور وہ اپنے دین سے لوگوں کو جوڑ رہا ہے, نئے دین سے لوگوں کو جوڑ رہا ہے, اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کو سب کو کہہ رہا ہے. وہ اپنے دین کی تبلیغ بڑی تیزی کے ساتھ کر رہا ہے, تیرے مکے والوں پر بے شمار احسانات ہیں. تو حبیب یمنی نے کہا اے ابو جہل میں نے تیری باتوں کو تو سن لیا ہے, اب ذرا محمد عربی کی بھی باتوں کو سن لے. مچل کے بولے سبحان اللہ. حبیب یمنی نے کہا اے ابو جہل میں نے تیری باتوں کو سن لیا ہے, اب ذرا محمد کی بھی باتوں کو سنا جائے, اس لیے کہ فیصلہ ایک کی بات کو سن کر کے نہیں کیا جا سکتا ہے, فیصلہ دونوں کی باتوں کو سن کر ہی کیا جا سکتا ہے. حبیب یمنی اٹھا اور حبیب یمنی ایک شخص کو بھیجتا ہے, جاؤ محمد عربی کو میرے پاس بلا لاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام گیا. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند جانثار صحابہ کو ساتھ میں لیا, اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس محفل میں جلوہ فرما ہوئے.
जहां हबीब यमनी बैठा हुआ था। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस महफिल में पहुंचे तो महफिल में सन्नाटा तारी हो गया। अब किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है, अब किसी में बोलने की ताकत नहीं है, अब किसी में बोलने की जुर्रत नहीं है। इसलिए कि क्यों? तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कौन है जो मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कलाम करने की हिम्मत रखता हो? कौन हो जो मेरे आका के सामने बोलने की जुर्रत रखता हो? काफी देर गुजर गई। काफी देर के बाद मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ हबीब यमनी, तूने मुझे क्यों बुलाया है? तूने मुझे किस लिए बुलाया है? तेरा काम क्या है? हबीब यमनी ने कहा, मैंने सुना है आप एक नया दीन लेकर के आए हैं। मैंने सुना है कि आप अपने आप को अल्लाह का पैगंबर बताते हैं। मैंने सुना है कि आप अपने आप को कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। ऐसा करिए, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अगर आप अल्लाह के नबी हैं, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, तो आप कोई मोजज़ा दिखाइए। इसलिए कि जो अल्लाह का पैगंबर होता है, जो अल्लाह का रसूल होता है, जो अल्लाह का नबी होता है, वो मोजज़ात दिखाया करता है। आप कोई मोजज़ा दिखाइए। अल्लाहु अकबर। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ हबीब यमनी, तू क्या मोजज़ा देखना चाहता है? हबीब यमनी ने कहा, मेरी दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि आज 14वीं का चांद पूरी आबो ताब के साथ आसमान पर चमक रहा है। अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तो आप उस चांद के दो टुकड़े कर दीजिए। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त में आते हैं, मेरे आका जलाल में आते हैं और अपनी उंगली मुबारक का इशारा करते हैं, अपनी अंगुष्ठे मुबारक का इशारा करते हैं, तो चांद अपने सीने को चाक कर देता है, चांद दो टुकड़े हो जाता है। सुभान अल्लाह। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया। मेरे आका ने फिर उंगली का इशारा किया तो चांद फिर आपस में मिल गया। हबीब यमनी ने कहा, मेरे दूसरी बात क्या है वो आप खुद बता दें। अल्लाहु अकबर। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ हबीब यमनी सुन, तेरी दूसरी बात ये है कि तेरी एक लड़की है जो अपाहिज है, हाथों से लूली है, पैरों से लगड़ी है, कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है। ऐ हबीब यमनी, वो तुझ पर बोझ बनी हुई बैठी है, तू चाहता है कि उसे शिफा मिल जाए। ऐ हबीब यमनी सुन, जा मैंने उसे शिफा अता फरमा दी है। बदल के बोले सुभान अल्लाह। ऐ हबीब यमनी सुन, तेरी एक लड़की है जो पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, तुझ पर बोझ बनी बैठी है, तू चाहता है उसे शिफा मिल जाए, जा मैंने उसे शिफा अता कर दी है। हबीब यमनी ने इतना सुना तो सुनने के बाद हुजूर के कदमों में गिर गए और हुजूर के कदमों में गिरने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरे और मेरे बेटी के दरमियान का मामला, या तो मैं जानता हूँ मेरी बेटी अपाहिज है या मेरा रब जानता है, लेकिन मुझे पता चल गया है कि आप गैब की खबर जानते हैं, आप मोजज़ात दिखाते हैं। मुझे यकीन हो गया है कि आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और हबीब यमनी फौरन कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं और पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उसके बाद जब आप कलमा पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहते हैं, आज से मैं यमन में मज़हब इस्लाम की तबलीग करूंगा। और वहां से उठते हैं, चंद दिन मक्का में रहने के बाद सफर करना शुरू कर देते हैं। बस आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ, हबीब यमनी सफर करते हुए जा रहे हैं मुल्क यमन की तरफ, और जब सफर करते 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 मुल्क यमन की सरहदों में आप पहुंचे, और मुल्क यमन की सरहदों में जैसे पहुंचे तो रात हो चुकी थी, रात का सन्नाटा तारी हो चुका था। आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से वही लड़की जो पैरों से लंगड़ी थी, हाथों से लूली थी, कानों से बहरी थी और आंखों से अंधी थी, वही लड़की दरवाजे पर आती है और दरवाजा खोलती है। और जैसे दरवाजा खोलती है अपने बाप को देखती है
अपने बाप हबीब यमनी को देखने के बाद पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब यमनी ये सुन करके ताज्जुब में पड़ गए और कहा, ए बेटी ये कलमा तुझे कहां से मिला है, और ए मेरी बेटी तू शिफा याब कैसे हो गई है, तुझे शिफा कैसे मिल गई है। तो उनकी लड़की ने कहा था, ऐ मेरे बाबा जान, मैं एक रात सो रही थी, अचानक मेरी किस्मत का सितारा तुलू हो गया। मैंने ख्वाब में क्या देखा कि एक काली काली जुल्फों वाले बुजुर्ग, एक हसीनो जमील चेहरे वाले बुजुर्ग मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और उन्होंने कहा, ए बेटी मैं तेरे बाप को मक्का में कलमा पढ़ा रहा हूँ, तू यहाँ कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। और मैंने जब कलमा पढ़ा तो उन्होंने अपना दस्ते शिफा मेरे बदन पर फेरा तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शिफा अता फरमा दी, अता फरमा दी। देखे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान कि करोड़ों मील की दूरी पर रहने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस लड़की को शिफा अता फरमाते हैं। और आसमान पर जो चांद था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार शान अता फरमाई है, बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए। बल्कि बेशुमार मोजज़ात तो क्या, मुख्तलिफ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम हज़रत आदम से लेकर के ईसा पैगंबर तक जितने भी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, सारे नबियों को अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई ख़ास मोजज़ा अता करता रहा और कोई ख़ास मोजज़ा अता करके इस दुनिया में भेजता रहा। लेकिन जब बारी आई अपने महबूब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, हम गरीबों के नबी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को सर से पैर तक मोजज़ा बना करके भेजा, सर से पैर तक मोजज़ा बना करके भेजा। सुभान अल्लाह। बस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको बोलने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। शादी को शादी खाना आबादी बना दे। और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि जिस मकसद के लिए हमारे चचा ने इस महफिल सरवर कौनैन का इंतज़ाम इनक़ाद इंतज़ाम किया, परवरदिगार आलम उनके मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। खड़े हो जाए, सलात व सलाम